اچھا، تو آج ہم جیمز کلیئر کی کتاب ایٹامک ہیبٹس پر بات کر رہے ہیں، اور یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، مطلب اس کی تقریباً 2 کروڑ کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ جی، اور یہ برسوں سے بیسٹ سیلر لسٹ پر ہے۔ بالکل، تو ہمارے پاس اس پر کافی مواد ہے، ویکیپیڈیا ہے، خود کلیئر کے خلاصے ہیں، عادات پر کچھ بہت سنجیدہ علمی تحقیق ہے، اور یہاں تک کہ ریڈٹ پر ہونے والی بحثیں بھی ہیں۔ اور آج ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے کا جادو کیا ہے۔ یہ اتنی کامیاب کیوں ہوئی، اور کیا یہ واقعی اتنی ہی انقلابی ہے جتنا کہا جاتا ہے؟ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں 2 بالکل مختلف قسم کی آراء ملتی ہیں۔ ایک طرف تو اس کی بے پناہ مقبولیت ہے، لاکھوں لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ان کی زندگی بدل دی، اور دوسری طرف کچھ ناقدین بھی ہیں جو اسے بہت سادہ اور سطحی قرار دیتے ہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کلیئر کا طریقہ کار اصل میں ہے کیا، اس کے پیچھے کی سائنس کیا کہتی ہے، اور یہ تنقید کتنی جائز ہے۔ بالکل، تو شروعات کرتے ہیں کتاب کے سب سے بنیادی خیال سے، روزانہ 1% بہتر بننا۔ جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا تھا مجھے لگا کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ جی، سننے میں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کتاب کا جو سب سے حیران کن نقطہ ہے وہ یہ نہیں کہ چھوٹی عادتیں اہم ہیں، بلکہ یہ کہ ہم کامیابی کے ٹائم فریم کو بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ ہم ایک سیدھی لکیر کی طرح ترقی کی توقع کرتے ہیں، جبکہ کلیئر بتاتے ہیں کہ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح بڑھتی ہے۔ یہ مثال بہت اہم ہے۔ اگر کوئی 1 سال تک ہر روز صرف 1% بہتر ہوتا ہے تو سال کے آخر میں وہ 37 گنا بہتر ہو جاتا ہے۔ 37 گنا؟ تو وہ تقریباً 0 پر پہنچ جاتا ہے۔ کلیئر کا کہنا ہے کہ لوگ اکثر اپنی چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں فوری نتائج نظر نہیں آتے۔ اسی سے جڑا ہوا ایک اور تصور ہے جسے کلیئر پوشیدہ صلاحیت کا پٹھار کہتے ہیں، پلاٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل۔ جی، مطلب ایک ایسی سطح جہاں آپ کی صلاحیت موجود تو ہے لیکن ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ذرائع میں اس کی برف کی مثال بہت اچھی طرح سمجھائی گئی ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ ایک کمرے میں ہیں جہاں برف کا ایک ٹکڑا رکھا ہے اور درجہ حرارت -5 ڈگری ہے۔ آپ درجہ حرارت بڑھانا شروع کرتے ہیں، -4، -3، کچھ بھی نہیں ہو رہا؟ کچھ بھی نہیں، -2، -1، 0۔ اتنی محنت کے بعد بھی برف ویسی کی ویسی ہی ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جسے کلیئر مایوسی کی وادی کہتے ہیں۔ آپ محنت کر رہے ہیں لیکن نتیجہ 0 ہے۔ اور پھر جیسے ہی درجہ حرارت 0 سے 1 ڈگری پر جاتا ہے برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ 1 ڈگری کی تبدیلی فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے۔ یہ خیال لوگوں کو یہ سمجھاتا ہے کہ جب وہ محنت کر رہے ہوں اور نتائج نظر نہ آئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے۔ وہ دراصل توانائی جمع کر رہے ہیں اس ایک اہم موڑ کے لیے۔ جی، اس ایک اہم موڑ کے لیے جب سب کچھ بدل جائے گا۔ اچھا، تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب آتے ہیں اس کتاب کے شاید سب سے متنازع حصے پر۔ کلیئر کہتے ہیں کہ ہمیں اہداف مقرر کرنا بھول جانا چاہیے، جی، اور اس کی بجائے اپنے نظام یعنی سسٹمز پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگتی ہے نا؟ کیونکہ ہمیں تو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اہداف مقرر کرو۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا ذہنی شفٹ ہے۔ کلیئر کی دلیل یہ ہے کہ جیتنے والوں اور ہارنے والوں کے اہداف اکثر ایک جیسے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اولمپکس میں حصہ لینے والا ہر ایتھلیٹ گولڈ میڈل جیتنا چاہتا ہے۔ صحیح، تو اگر سب کا ہدف ایک ہی ہے تو ہدف خود کامیابی کی ضمانت کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے وہ ان کا روزانہ کی مشق اور بہتری کا نظام ہے۔ اچھا، تو ذرائع اس بات کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ صرف اہداف پر مبنی سوچ میں 3 بڑے مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوشی کو مستقبل کے لیے ملتوی کر دیتی ہے۔ بالکل، مطلب جب میں اپنا وزن 10 کلو کم کر لوں گا تب میں خوش ہوں گا، یا جب مجھے ترقی ملے گی تب میں مطمئن ہوں گا۔ اس سے زندگی ایک رکاوٹ بن جاتی ہے جسے خوشی تک پہنچنے کے لیے پار کرنا ہے۔ صحیح، لیکن اگر آپ نظام پر توجہ دیں، یعنی صحت مند کھانے اور روزانہ ورزش کرنے کے عمل پر، تو آپ کو ہر روز اطمینان مل سکتا ہے۔ آپ کو خوشی کے لیے کسی منزل تک پہنچنے کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اہداف صرف ایک لمحاتی تبدیلی لاتے ہیں۔ جیسے آپ کا ہدف ہے کہ کمرے کو صاف کیا جائے، آپ نے کمرہ صاف کر دیا، ہدف پورا ہو گیا۔ لیکن اگر آپ کی چیزیں بے ترتیبی سے رکھنے کی عادت یعنی آپ کا نظام وہی رہا تو کمرہ چند دن میں پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ آپ صرف علامات کا علاج کر رہے ہیں، اصل بیماری کا نہیں۔ اور تیسرا مسئلہ جسے یو اثر کہا گیا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ بہت سے لوگ میراتھن کے لیے مہینوں سخت ٹریننگ کرتے ہیں، جی، ان کی پوری زندگی اس ایک ہدف کے گرد گھومتی ہے،
लेकिन जैसे ही वो फिनिश लाइन उबूर करते हैं वो ट्रेनिंग करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि जिस हदफ ने उन्हें मुतहर्रिक रखा था वो अब खत्म हो चुका है। निजाम का मकसद सिर्फ एक बार गेम जीतना नहीं होता बल्कि उसे खेलते रहना होता है। ठीक है, तो हमें अहदाफ से ज्यादा निजाम पर तवज्जो देनी है, ये बात तो समझ आ गई। लेकिन सवाल यह है कि एक अच्छा निजाम होता कैसा है, उसे बनाया कैसे जाए? खुशकिस्मती से क्लियर ने इसके लिए एक बहुत ही अमली तरीका बताया है जिसे वो रवैये की तब्दीली के 4 कानून कहते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि हर आदत 4 मराहिल से गुजरती है: इशारा, ख्वाहिश, रद्द अमल और इनाम। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड आते हैं तो आपको उसे जाहिर बनाना होगा, पुरकशिश बनाना होगा और इत्मीनान बख्श बनाना होगा। और अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है तो बस उसका उलट करना है, उसे गैर मौजूद, गैर पुरकशिश, मुश्किल और गैर इत्मीनान बख्श बना दें। ये फ्रेमवर्क बज़ाहिर बहुत सीधा साधा लगता है, लेकिन ये सब कुछ उस किताब के सबसे गहरे ख्याल से जुड़ता है, और वो है शनाख्त यानी आइडेंटिटी। मेरे ख्याल में ये इस किताब का सबसे ताकतवर आइडिया है। शनाख्त? वो कैसे? क्लियर का कहना है कि असल तब्दीली रवैये की सतह पर नहीं बल्कि शनाख्त की सतह पर होती है। मकसद सिर्फ एक किताब लिखना नहीं बल्कि एक लिखारी बनना है। मकसद सिर्फ मैराथन दौड़ना नहीं बल्कि एक रनर बनना है। बिल्कुल। ये बात तो बहुत गहरी है, क्योंकि हम सब ने कोशिश की है कि कल से जिम जाऊंगी, लेकिन ये सोचना कि मैं एक ऐसी शख्स बनना चाहती हूँ जो अपनी सेहत का ख्याल रखती है, ये पूरे खेल को ही बदल देता है। जी, क्लियर कहते हैं कि आपका हर अमल उस शख्स की किस्म के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। जब आप वर्जिश करते हैं तो आप एक सेहतमंद शख्स होने के हक में वोट डाल रहे होते हैं, और वक्त के साथ साथ जब ये वोट जमा होते जाते हैं तो आपका अपने बारे में यकीन बदलना शुरू हो जाता है। ये अंदरूनी तब्दीली है जो बैरूनी दबाव से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। जब कोई आदत आपकी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है तो आपको उसे करने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता। और अमली तौर पर इसे शुरू करने के लिए आसान बनाए वाले कानून के तहत उनकी एक बहुत मशहूर टिप है 2 मिनट का उसूल। जी, वो कहते हैं कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि इसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम वक्त लगे। रोजाना वर्जिश करना एक बहुत बड़ा हदफ लगता है, लेकिन वर्जिश के कपड़े पहनना सिर्फ 2 मिनट का काम है। या रोजाना 1 घंटा पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 1 सफ़ा पढ़ना बहुत आसान है। मैंने खुद ये 2 मिनट वाला उसूल आजमाया है। मैं रोज गिटार प्रैक्टिस करना चाहता था लेकिन वक्त नहीं निकाल पाता था, तो मैंने अपनी आदत को बदलकर सिर्फ ये कर दिया कि रोजाना गिटार केस से बाहर निकालना है। अच्छा। और आप यकीन करें, जब गिटार हाथ में होता था तो 10 में से 8 बार मैं उसे 5-10 मिनट बजा ही लेता था। असल मकसद आदत को शुरू करने के अमल में महारत हासिल करना है। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो जारी रखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमारे पास यूएससी डॉनसाइफ का एक इल्मी मकाला भी है जो इनमें से कई ख्यालात की तस्दीक करता है, लेकिन ज्यादा साइंसी जबान में। जी, और उसके पीछे की साइंस बहुत दिलचस्प है। ये दरअसल आपके दिमाग की वायरिंग बदलने जैसा है। जब आप कोई काम सोच समझ कर करते हैं तो आपके दिमाग का एग्जीक्यूटिव हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस्तेमाल होता है, जो फैसला साजी करता है। जी, लेकिन जब आप एक ही काम को एक ही इशारे के जवाब में बार बार दोहराते हैं तो दिमाग ये काम अपने ऑटो पायलट सिस्टम यानी बेसल गैंग्लिया को सौंप देता है। यही वजह है कि आप बगैर सोचे समझे गाड़ी चला सकते हैं या दांत ब्रश कर सकते हैं। सही, ये आदत अब आपके सिस्टम का हिस्सा बन चुकी है और इसके लिए कुव्वत इरादी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी मकाले में खुद पर काबू पाने के बारे में एक हैरानकुन बात लिखी है। तहकीक से पता चलता है कि जिन लोगों में खुद पर काबू ज्यादा होता है वो जरूरी नहीं है कि लालच का मुकाबला करने में बेहतर हों। तो फिर वो क्या करते हैं? वो इससे बचने में ज्यादा माहिर होते हैं। वो अपने माहौल को ही इस तरह डिजाइन करते हैं कि उन्हें बार बार अपनी कुव्वत इरादी का इम्तिहान ही ना देना पड़े, जो बिल्कुल क्लियर के पहले कानून उसे जाहिर बनाए या उसे गैर मौजूद बनाए जैसा है। बिल्कुल। वो जानते हैं कि अगर घर में कुकीज का डब्बा रखा होगा तो वो उसे खा लेंगे, इसलिए वो उसे खरीदते ही नहीं है। ये दिफाई खेल नहीं बल्कि हमला आवर खेल है। वो मसाइल पैदा होने से पहले ही इन्होंने खत्म कर देते हैं। जी, लेकिन यहाँ से एक अहम सवाल पैदा होता है। जाहिर है हर कोई इस किताब का फैन नहीं है। हमारे पास मौजूद जराए में द गार्डियन और द न्यूयॉर्कर के मज़ामीन भी हैं जो इस पर सख्त तनकीद करते हैं। जी, और ये तनकीद नजरअंदाज नहीं की जा सकती। द गार्डियन ने इसे उन किताबों में शुमार किया जिनमें नीम साइंसी अजीम नजरियात और तस्कीन बख्श लेकिन नाकाबिल फहम मशवरे होते हैं। अच्छा। उनका सबसे बड़ा एतराज ये था कि ये फलसफे का एक अच्छा महसूस कराने वाला मार्वल मूवी वर्जन है। फिलॉसफी का मार्वल मूवी वर्जन, ये तो एक बहुत सख्त तनकीद है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि लोगों के एहसासात की तौसीक करता है बजाय इसके कि उनके तस्वुरात को चैलेंज करे। ये गहरे मसाइल को नजरअंदाज करके सिर्फ सतह पर काम करता है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है? मेरे ख्याल में इसमें थोड़ी सच्चाई है। क्लियर का फ्रेमवर्क उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनके पास अपनी जिंदगी को तरतीब देने की आजादी और वसाइल हैं। मिसाल के तौर पर बुरी आदतों को मुश्किल बनाओ का मशवरा उस शख्स के लिए बहुत अच्छा है जो अपने घर का माहौल कंट्रोल कर सकता है। लेकिन ये उन निजामिया या गहरे नफ्सियाती मसाइल का हल पेश नहीं करता जो किसी को पहली जगह पर तब्दीली करने से रोकते हैं।
बिल्कुल, जैसे गुर्बत, ज़हनी सेहत के मसाइल या एक गैर मुआविन माहौल। और द न्यूयॉर्कर का नुक्ता भी इसी से मिलता जुलता है। वो कहते हैं कि जैसे ही जिंदगी में कोई छोटी सी रुकावट भी आती है, बच्चा बीमार हो गया, नौकरी में मसला हो गया, तो ये सारे साफ सुथरे निजाम बिखर जाते हैं। और फिर ज़मीर ऐसे मशवरों के खिलाफ बगावत कर देता है कि ये सब कहना आसान है, करना मुश्किल। ये देखना वाकई दिलचस्प है कि एक तरफ 2 करोड़ लोग इसे खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ इतनी संजीदा तनकीद भी मौजूद है। ये तनकीद बुनियादी तौर पर इस ख्याल पर मरकूज है कि ये किताब इंसानी रवैये की पेचीदगी को बहुत ज्यादा आसान बना देती है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल हल पेश करती है, जबकि इंसानी मसाइल अक्सर बहुत ज्यादा जाती और पेचीदा होते हैं। तो इस सब का क्या मतलब निकाला जाए? एक तरफ हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसे लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए मुफीद पाया है। रोजाना 1% बेहतरी, निजाम पर तवज्जो और शनाख्त बनाने जैसे सादा और ताकतवर नजरियात। और दूसरी तरफ इल्मी तहकीक भी माहौल को डिजाइन करने और तकरार के जरिए आदात को खुदकार बनाने के बुनियादी मैकेनिज्म की हिमायत करती है। लेकिन तनकीद भी एक अहम नुक्ता उठाती है कि ये फ्रेमवर्क हर किसी के लिए और हर सूरत हाल में काम नहीं कर सकता। ये हमें एक बहुत ही अहम सोच पर छोड़ जाता है। ज़राए में हमने देखा कि जिन लोगों में खुद पर काबू पाने की सलाहियत ज्यादा होती है, हो सकता है उन्होंने जिंदगी में पहले से ही दिफा के बजाय हमला करना शुरू कर दिया हो और कामयाबी के लिए अपने माहौल को तरतीब दिया हो। तो आखिरी सवाल ये बनता है कि एटॉमिक हैबिट्स बनाने की ये सलाहियत किस हद तक खुद एक पहले से मौजूद महारत या इस्तेहकाक है, बजाय इसके कि ये एक ऐसा निजाम हो जिसे कोई भी कहीं से भी अपनी जिंदगी में अपना सकता है। जी, क्या ये किताब उन लोगों की मदद करती है जो पहले से ही तब्दीली के लिए तैयार हैं, या ये वाकई किसी को भी सिफर से शुरू करने में मदद दे सकती है? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हर शख्स को अपने हालात के मुताबिक खुद तलाश करना होगा।